हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी अनअटेम्प्टेड। कल रात 70th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंड फॉर्चुनेटली आई फाउंड माय नेम इनटू द लिस्ट। सो ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एक्सेप्ट दिस रिजल्ट with greatest gratitude because I know there are many out there who is working day and night just to see their name into the interview list. This result has also made me more humble because luck definitely plays a role in this type of exams, and I know there are many out there who are more knowledgeable than me, who had worked more harder than me, but still they couldn't find their name into the list. So it will act as a reminder for me to not take anything for granted into the civil services preparation. Now, what's next I am going to do in my preparation journey? So I will definitely focus on the interview, but along with this I will also continue my UPSC mains preparation. I know I won't be able to give that much time to the mains prep as I used to give earlier. I know I will have to divide time, so I will definitely make a schedule to proceed further in a structured way so that I don't compromise on my UPSC mains preparation, because my final goal is still UPSC civil service exam, because this is what I started the preparation for. Another thing which I will be focusing is my health, because I want to present my best self into the personality test. I used to go gym regularly a year ago, so I will have to just resume that routine. Now, a small message for those who couldn't make it, and for those also who are into this preparation, whether it's civil services or UPSC. There are two dimensions of this preparation, or we can say of this exam. There are things which you can control, and there are things which you can't control. And what we can't control, we usually refer to that thing as luck. So let's see what are the things which we can't control in the exam, but it definitely plays a role. So the first thing is क्वेश्चन आंसर ओवरलैप। अब ये हो सकता है कि जो आपने प्रिपरेशन के टाइम पे क्वेश्चन आंसर लिखे, जो पढ़ा वही एग्ज़ाम में आ गया, या उसी काफ़ी सिमिलर थीम पे काफ़ी सिमिलर डायमेंशन पे क्वेश्चन आ गए एंड इट बिकम ईजी फॉर यू। ये हो सकता है कि आपने जिस तरीके से प्रिपेयर किया उससे काफ़ी हट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, तो आपका पेपर बहुत ख़राब भी हो सकता है। द सेकेंड थिंग इज़ क्वेश्चन पेपर ओरिएंटेशन। अब कई बार पेपर्स का नेचर जीएस बेस्ड होता है, स्टैटिक बेस्ड होता है, एंड कई बार पेपर का नेचर जो है वो करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। एंड ऐसा हो सकता है कि आपने स्टैटिक का प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया हो, करंट अफेयर्स पर उतना ध्यान नहीं दिया, एंड एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आ गए, तो आपका पेपर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि आपने करंट अफेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया एंड स्टैटिक छोड़ दिया, एंड स्टैटिक बेस्ड पेपर आ गया, तो आपका पेपर तब भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है। द थर्ड थिंग इज़ इवेल्युएटर सब्जेक्टिविटी। सो दिस डिपेंड्स ऑन द इवेल्युएटर्स own belief system, whether he or she agrees with your answer or not. दूसरा ये भी चीज़ हो सकता है कि आपने एवरेज आंसर लिखा, बट आपसे पहले जो कॉपी चेक की गई उसमें काफ़ी अच्छा आंसर लिखा हुआ था, तो जो इवेल्युएटर है उसको रेफरेंस मान के आपको बहुत ख़राब मार्किंग भी दे सकता है। एंड आपके पहले अगर जो कॉपी आई उसमें बिलो एवरेज आंसर अगर लिखे होंगे, तो हो सकता है आपको एवरेज
आंसर्स पे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो दिस थिंग is present there and we can't deny it. The fourth thing is health and mental state on exam day. I would say it is the most important thing because it can really ruin your whole attempt. If you are not in your best mindset on the exam day, it might bring your marks significantly down. So always take care of your health and mental state. The fifth thing is number of seats in the exam and cutoff. ऐसा हो सकता है कि आप जिस साल एग्ज़ाम दे रहे हो उस साल काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है एंड जिस वजह से आपको एडवांटेज मिले एंड यू गेट सिलेक्टेड। ये भी हो सकता है किसी साल कम सीट है एंड इस वजह से आप एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाओ। सेम गोज़ विद द कट ऑफ। वी कांट रियली प्रेडिक्ट द कट ऑफ। कई बार मेंस में ज़्यादा सीट वाली वैकेंसी के लिए हायर कट ऑफ गया है एंड लो सीट वाली वैकेंसी के लिए लोअर कट ऑफ गया है। सो these are the 5 things we can't really control. Now what we can actually control is our content coverage. हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर कर लें एंड सिर्फ कवर ही नहीं करें, उसको इस तरीके से कवर करें कि हमें वो याद रहे, हम वो एग्ज़ाम में लिख पाएँ। वरना अगर आप सिर्फ कंटेंट खूब सारा पढ़ रहे हो एंड उसको आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो, उसको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो वो किसी काम का नहीं है। तो कंटेंट कवरेज इस तरीके से करो जो आपको लंबे समय तक याद रहे। दूसरी चीज़ जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वह है हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड दिस हेल्प्स अ लॉट। आई माई सेल्फ है बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दिस। अगर कोई एक चीज़ जो मैंने इस प्रिपरेशन में सबसे अच्छे से करी थी तो वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज दिस इज़ वेरी important to have a practice to complete your paper on time. The third thing which you can control is your structure and presentation, and it matters a lot. Whatever you have read, you have to present that in a manner that is evaluator friendly, that someone likes to read, and this is what will get you marks. बिकॉज एग्जामिनर को नहीं पता आपने कितना कंटेंट कवर किया है, उन्हें यह भी नहीं पता आपने कितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, उन्हें ये दिखता है आपका स्ट्रक्चर, आपका प्रेजेंटेशन, और जिसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स देते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन टू वर्क अपॉन। एंड द फोर्थ एंड द फिफ्थ थिंग इज कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। सो देयर विल बी डेज ऑन विच you won't like to study. There would be days you will give extra hours to study. So what all you have to do is to show up every day. Try to show up every day. अगर कभी पढ़ाई नहीं भी हो पाई तो कोई बात नहीं, अगले दिन से वापस उसी मोटिवेशन, उसी डिसिप्लिन के साथ लग जाओ जैसे रेगुलरली तुम पढ़ते हो। ऑल्सो इन दिस एग्ज़ाम पेशेंस has a very important role, and this result itself is a very good example of for the requirement of patience exam, because the prelims for this 70th BPSC mains happened on 13 December 2024 and its result for mains were declared on 16 December 2025. सो अब देखो इसके बीच में अराउंड 1 साल का टाइम लगा सिर्फ प्रीलिम्स से मेंस के रिजल्ट डिक्लेयर होने तक। इंटरव्यू में बचा हुआ है, उसको इंक्लूड करेंगे तो मे बी ये टाइम 1.5 ईयर तक चला जाएगा। तो सोचो इस एग्ज़ाम का सिर्फ साइकिल ही 1.5 ईयर का चला जाता है। हालांकि बीपीएससी में ये साइकिल काफ़ी छोटा है, बट स्टेट पीसीएस में ये साइकिल लंबा जा सकता है। तो अब सोचो जब इस
तरह के एग्ज़ाम्स का साइकिल ही इतना लंबा है, और अगर आपने अपना पेशेंस बीच में ही खो दिया तो आपका प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, इन तीनों स्टेज में से कोई ना कोई स्टेज खराब हो जाएगा एंड यू विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन. सो वी हैव टू कीप पेशेंस एंड शो अप कंसिस्टेंटली. एंड आज की इस वीडियो में मेन से रिलेटेड मैं कुछ अपडेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर पाया. आज काफ़ी सारा टाइम मेरा इस रिसर्च में चला गया कि इंटरव्यू के लिए कैसे आगे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है. होपफुली फ्रॉम टुमारो I will follow my regular routine for the mains, and I will try to follow Unstoppable 75 as much as I can, because I know it will be very difficult for me to manage interview with the mains preparation, but I will try really hard to manage it to whatever extent I can. And maybe अगले वीडियोस में मैं अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड भी कुछ ग्लिम्सेस दूंगा. So that's it for today. Thank you. See you in the next video.